Hi, good evening, everyone. Uh, I hope this time audio is audible, like I'm audible. Proper साफ आवाज आ रही है आप सभी को. Good evening, good evening. I'm all good. I'm all good. I hope मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं. Let's wait for a minute or so ताकि हमारे सारे friends and साथी join कर लें हमें before we begin anything ahead. जय हिंद, जय हिंद. Oh, thank you. Good to know that audio is clear. I hope you had a good day today, every one of you. Okay, so I think roughly around 400, 500 of our friends are here, already आ गए हैं. So हमें start करना चाहिए. मैं ठीक हूँ एकदम perfectly fine. I'm all well. Lot of travel here and there काम की वजह से, but I'm all good. Before we begin, it's just a small request that we keep the questions and answers only. And happy Onam everyone. To everyone, I wish you very happy Onam. We keep the questions answers only in the end, towards the end of our discussion. मैं आप सभी से questions के लिए बोलूंगा. Then I request everyone to kindly forward their question जो जो भी आप सभी के होंगे. Let's begin. करें शुरू. I'm also excited to see every one of you. Okay, चलो शुरू करते हैं. So good evening everyone. I welcome all of you to our first live session जिसमें मैं अपने कुछ thoughts आपसे share करूंगा. And I'll share my experiences with you so that आप उनको अपनी life में use कर सकें to grow and to achieve your goals. आज का topic जो है हमारा वो रहेगा train your mind to achieve your goals. After serving for roughly around 8 years in the Indian Army, so I have a lot of experience and I think sufficient enough experience जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि how do you train your mind to actually achieve what you set for. So let's begin. I think हम सब ने ही कुछ ना कुछ गोल्स प्रिपेयर किए होंगे जो हम सोचते हैं और जिनको हम स्टार्ट करते हैं. So start करने के लिए goals को we have motivation, what I spoke to you in the last session as well. सबके पास अपनी motivation होती है, एक thought और एक aim होता है. कई सारे आप सब में से UPSC aspirants होंगे, defense aspirants होंगे, and in the corporate world also you might have your own targets. Other than this you might have your own goals, आपको कुछ life में achieve करना हो. So वो एक final goal है आपका, and उसको achieve करने के लिए आप say for example आज से start करते हैं. So the first thing which comes or which pulls you towards that is your motivation. Your motivation and your desire to achieve your goal or reach at a position where you're able to achieve that goal. And motivation, you know, army में कहते हैं कि motivation is good thing. You should always be motivated, but motivation is not the reliable thing. It will not be always there when difficulties arise, when you fear about losing, when you fear about giving up, आपसे नहीं हो पा रहा है. So motivation then it, you know, sideline हो जाती है, it goes aside. And then comes the main part, which is discipline. So discipline is a system और motivation जो है it's a feeling. So motivation is a, you know, आपको पता ही, आप सभी को पता होगा, there are two types of motivation, intrinsic और extrinsic motivation. Extrinsic is जो हमें बाहर से मिलती है, जैसे कि rewards हो गए हमारे goal achieve करने के, हम जो सेट करने को निकले थे अगर हम वो अचीव कर लेंगे तो इसके रिवॉर्ड्स क्या होंगे, लोगों की शाबाशी, अपलॉड, people will applaud you all. So that gives you extrinsic motivation. It is fast, but ये जल्दी ही चला भी जाता है. And on the other side, the other thing is intrinsic motivation, अंदर से आई हुई इच्छा, motivation.
जिसको आपने बचपन से सपना लिया था कि मैं फौज में जाऊंगा, जैसे मैंने बचपन में सपना लिया था, आई वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी और द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो दैट वाज माय इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से लाई गई मोटिवेशन थी। बट डिसिप्लिन इज अ सिस्टम, वो सिखाया जाता है। यू ट्रेन योर माइंड, you train your mind to work in a particular way, जहां पे आपका फोकस एंड डेडिकेशन विल ओनली बी टूवर्ड्स अचीविंग। अब जैसे आपने आज गोल स्टार्ट कर लिया एंड देन आफ्टर कपल ऑफ डेज, से फॉर एग्जांपल 5 days, 10 days और 14 days, हर इंडिविजुअल का अलग अलग थ्रेश होल्ड लेवल होता है। सो 14 days के बाद मोटिवेशन, जब रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो मोटिवेशन कम होने लग जाता है। यू टेंड टू गिव अप, यू टेंड टू सी दैट अब मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो शायद मैं फेलियर ही हूँ। कई बार ऐसा थॉट भी आता है, मेरे में भी आया था। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एनडीए एग्जाम्स, आई डिडंट क्लियर इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई थॉट दैट कहीं ना कहीं मेरे अंदर वीकनेस है, मैं फेल हो सकता हूँ। जब मैं नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने गया था, तब भी एग्जाम स्टार्ट करने से पहले देयर वाज दिस फियर इन माय हार्ट दैट मैं फिर से फेल हो गया तो व्हाट विल आई डू। बट देन यस, यू हैव टू एक्चुअली ट्रेन योर माइंड। आप अपने दिमाग को जितना इनपुट और जैसा इनपुट दोगे, योर बॉडी एंड योर माइंड विल फंक्शन अकॉर्डिंगली। नाउ हाउ यू टारगेट, मैं आप सभी से डिस्कस करूंगा एक ऐसा हैक, अपने ब्रेन को कंट्रोल करने का एक हैक है। देयर आर 2 things which I will be discussing. First is RAS, Reticular Activating System. So I'll just give you an example. मैं जैसे एक गाड़ी खरीदने गया, I would always wanted to buy a car. So मैं मार्केट जाता हूँ, I buy a white color Honda कार, और एनी पर्टिकुलर कार, कोई भी हो सकती है। मैं गाड़ी खरीद के घर आता हूँ वापस, एंड कुछ दिनों बाद जब मैं गाड़ी लेके चलता हूँ बाहर मार्केट या रोड पे जाता हूँ, सो आई सी होंडा कार्स आउटसाइड। सो दैट इज माई ब्रेन फंक्शनिंग। वो ब्रेन दिखा रहा है, पहले भी एग्जिस्ट करती थी इतनी सारी होंडा कार्स, बट जब मैंने गाड़ी ले ली खुद के पास तो मैं ज्यादा नोटिस करने लग गया चीजें। सो दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दैट इज इन योर ब्रेन। आप जैसा सोचते हैं वो वैसी ही चीजें आपको बिलीव करवाता है। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट। अगर आपका गोल अचीव नहीं हो पा रहा है, आप फेलियर, बार बार फेलियर आ रहा है, आप सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या छोटे छोटे स्टेप्स पे गिव अप करने का मन कर रहा है, टेल योरसेल्फ, आज नहीं कल, नॉट टुडे बट टुमारो। एंड ऑलवेज ऑलवेज जब हम सोचते हैं, गोल इज ऑलवेज बिग, मैं एक दिन बड़ा अधिकारी बनूंगा या मैं एक दिन अच्छा इंसान बनूंगा, बट योर ब्रेन फंक्शंस ऑन क्रिस्प क्लियर ऑर्डर्स। जैसे आप सभी को पता ही होगा ना, ब्रेन गिव्स यू ऑर्डर्स एंड योर बॉडी फॉलोज इट। सो अगर ऑर्डर क्लियर और क्रिस्प होगा, बॉडी विल बी एबल टू फंक्शन अकॉर्डिंगली। बट एक इनडेफिनेट गोल होगा अगर, सो बॉडी भी इनडेफिनेट गोल की तरफ जाएगी, इट विल गिव अप सूनर और लेटर। सेकेंड इज डोपामीन। जब आपको सक्सेस, धीरे धीरे सक्सेस मिलने लगती है, यू फील एक्साइटेड, आपको पॉजिटिवनेस आती है। आपने रिटन एग्जाम के लिए गए थे, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पे अधिकारी बनना चाहते हैं, उसके लिए आपने प्रिपेयर करके आपने एग्जाम दिया। एग्जाम अगर आपका पास हो जाता है तो आपको अंदर से खुशी मिलती है और आपकी इंटरव्यूज के लिए आपको मोटिवेशन मिलती है। सो दिस इज डोपामीन, इट गिव्स यू मोटिवेशन, इट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, जिससे वो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ। इन एनी केस, अगर ये नहीं भी होता है, यू शुड ऑलवेज फोकस कि आप अपने माइंड को ऐसा बोलो कि मैं हारूंगा नहीं, मैं कल इतना करूंगा। छोटे छोटे डेफिनेटिव स्टेप्स में इफ यू ट्रेन योर माइंड, सो यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू सेट फॉर। एक और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है ओडा लूप। आई थिंक आप सबने सुना ही होगा। ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट। So this is another very, very, very important thing which you should always have when you're preparing for anything in your life. चाहे वो entrance exams हो, you want to be a defense services officer, you want to join the UPSC as an administrative officer or any service cadre. आप किसी भी गोल एम के लिए जा रहे हैं, और इवन नॉट एक्चुअली सिर्फ ना ही सिर्फ इसी के लिए, बट फ्यूचर में किसी और गोल के लिए भी आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। सो
always follow these 4 steps. First is observe or orient, absorb, decide and act. First is observe. So आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? फर्स्ट यू डिफाइन अ गोल. आप एक अपना गोल डिफाइन करते हो, देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल. धीरे धीरे. यस, ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट सॉरी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. आई रिक्वेस्ट आप सभी प्लीज कमेंट्स थोड़ी देर के लिए रोक लें और सुन लें मुझे, सो दैट व्हेन वी कम इन द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन तो मैं आपके क्वेश्चंस को पढ़ पाऊं और मैं आप सभी को आंसर कर पाऊं. सो यस, हम लोग we were talking about ODA loop, which is observe, orient, decide and act. So observe करेंगे. सबसे पहले आपने डिफाइन किया गोल, आप उसके प्रति काम कर रहे थे, you were working towards it. Then you find the weakness in it. जहां आप हार रहे हैं, जहां आपको हार मिल रही है, आपका गिव अप करने का मन कर रहा है या फिर आपकी मोटिवेशन कम हो गई है. सो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है. एग्जाम प्रिपेयर करने निकले, 10 दिन बाद पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, पहली बार फेल हो गए, तो अब क्या? तो ये छोटी छोटी जो आपकी खुद की वीकनेसेस हैं, यू हैव टू नोट इट डाउन. नोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. कुछ लोग कैन रिमेंबर इन देयर माइंड, विच इज वेरी गुड, बट जो लोग रिमेंबर नहीं कर सकते हैं, नोट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. Always and always observe your own weaknesses. This will help you grow in your life. Please. Okay? So आपने ऑब्जर्व कर लिया. नाउ ओरिएंट योरसेल्फ. अपने दिमाग, अपने आप को बताओ कि दिस इज माई वीकनेस. आई हैव अ सेट पर्टिकुलर वीकनेस. ये मेरी वीकनेस है. अब मुझे इस पे काम ज्यादा करना है बिकॉज मेरा गोल क्लियर है. आई हैव माई गोल, आई हैव माई एम सेट एंड हाउ आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट गोल. बट जब मैं गोल में से मेरी ये वीकनेसेस आई, नाउ आई विल वर्क अपॉन माई वीकनेसेस ओनली. प्रायोरिटी पे सबसे पहले वीकनेस पे काम करूंगा. सो वी हैव डन द ऑब्जर्वेशन, वी हैव डन द ओरिएंटेशन. नाउ वी कम टू द डिसीजन पार्ट ऑफ इट. डिसाइड हाउ विल यू डू इट. डिफाइन हाउ विल यू डू इट. पहले डिसाइड करें, फिर डिफाइन करें. धीरे धीरे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे मैराथन रनर बनना है. दैट वॉज माई एम or my goal. I wanted to be a marathon runner. I started running every day. धीरे 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 बॉडी गोज डाउन. आप कभी भाग नहीं पा रहे हैं, बीमार हो गए और मे बी गिव अप करने का मन कर गया. सो यू नो योर वीकनेस कि आपका गिव अप करने का मन करता है. मे बी यू रन इन द इवनिंग. सॉरी एवरीवन. सो आप शाम को भागते हैं या आप सुबह अच्छा भागते हैं. यू नो योर वीकनेसेस. So you observe your weaknesses, then orient yourself. अपने दिमाग, अपने शरीर, अपने दिल को विश्वास दिलाओ कि ये मेरी weaknesses है. If I work upon it, then मैं अच्छा कर पाऊंगा. Now decide. So it's your now decision. कैसे करेंगे? हर दिन एटलीस्ट, अगर आज रनिंग करने का मन नहीं है, I will put on my shoes. मैं शूज पहनूंगा और मैं वॉकिंग के लिए जाऊंगा. This was your first decision. अपनी वीकनेस को, क्योंकि अगर हम गए ही नहीं तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? So it's always better to start. अगर आप स्टार्ट कर पा रहे हैं तो आप फिनिश कर पाएंगे गोल को. एंड देन इन द लास्ट इज एक्ट. आपने डिसाइड कर लिया. नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर डिसीजंस. एक्ट अपॉन योर डिसीजंस. सो दिस इज द ओडा लूप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्प यू. अब let's talk about how your mind actually works. So mind is as जैसे फौज में कहते हैं, commanding officer or a senior officer, or let's say एक leader. So mind is the leader. It gives directions, it gives orders. जैसे यूनिट में सीओ देते हैं या सीनियर ऑफिसर्स अपने जूनियर्स को देते हैं, और लीडर्स अपने सबऑर्डिनेट से अपने जूनियर्स को देते हैं. सो क्लियर डायरेक्शंस अगर माइंड दे रहा है तो बॉडी फंक्शन कर रही है. वैसे ही क्लियर ऑर्डर्स अगर हमारे सुपीरियर से हमें मिल रहे हैं तो हमारे मिशन और एम परफेक्ट है. हम अचीव करेंगे ही करेंगे सक्सेस. बट इनडेफिनिट होंगे अगर ये सब चीजें, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क अपॉन इट. सो योर माइंड इज एक्चुअली वर्किंग इन द सेम वे. सेम इस प्रकार से ही, इस तरीके से ही इट वर्क्स. एंड देन देयर आर, आई वुड से, व्हाट आर द allies एंड एनिमीज ऑफ माइंड. मेंटल allies क्या है और मेंटल एनिमीज क्या है. तो मैं आप सभी से पूछूंगा, लेट्स स्पीक हेयर. What do you think are the mental enemies? What are the enemies of your mind? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी मेंटल
कैपेबिलिटी, मेंटल एंड्योरेंस ये कम होती है। आई एम ओपन, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर, प्लीज लिखिए, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। Fear of future, overthinking, yes, overthinking, technology, okay, overthinking is common. Depression, yes, feeling low, overthinking, okay. Fear, distraction or negative thoughts, procrastination, yes, of course. Doom scrolling, negative thoughts, fear of failure, yes, okay. So let me just, आप सबके ये laziness is another. So let me just concise it to small things. First is confusion. It is a very big enemy of your mind. Your mental enemy is confusion. If you are not clear, there are confused thoughts in your mind, confused aim, आपका goal confused है, you will never be able to achieve it. It will, this confusion will halt your progress in life. आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगी. So, what is a good thing for confusion? Clear and crisp thoughts, clear and crisp aim, goal, and way of functioning towards that. So always remember confusion. Second is doubt. खुद पे डाउट करना, अपनी काम करने की कैपेबिलिटी पे डाउट करना. प्रेशर गिव्स यू डाउट. सो आप खुद को डाउट करने लगोगे. खुद पे डाउट कब आता है? आप रिजल्ट्स जब नहीं देखते हैं. जब आपको रिजल्ट्स छोटे छोटे शॉर्ट टर्म चीजों में, इफ यू आर नॉट एबल टू सी पॉजिटिव रिजल्ट्स, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. योर फ्रेंड्स टेल यू, पीयर प्रेशर होता है, सेल्फ ट्रस्ट कमी हो जाती है, खुद पे विश्वास पे, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. नेवर डाउट योरसेल्फ. ऑलवेज एक्सेप्ट losing as I will improve tomorrow. Okay, I lost today. Note down the weakness, work on that weakness, clear, and you will win tomorrow. आप वो अचीव कर पाओगे जो आपने सोचा था, जिसकी वजह से खुद पे डाउट आ रहा था, आप वो अचीव कर पाओगे. ओके. थर्ड इज इमोशनल फटीग. आप खुद से थक जाते हो. आपके आसपास वाले आपको थका देते हैं. देयर आर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं मेरी भी लाइफ में, जहां पे व्हेन आई सेट टू अचीव समथिंग, thought of doing something and I was not able to do it in the first step, then किसी ना किसी ने कुछ कमेंट्स पास किए, किसी ने पूछ लिया, my family or my friends, peer, आपके friends, they always question you. So always accept criticism as a positive thing. Never let the criticism affect you. And always listen to people. जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, they are helping you. If they are telling you that you are, waste of everything, accept it, but do not let it affect your thought. Always and always remember कि लोग आपकी मदद तो कर रहे हैं, but आपको ये सब बोल के आपको और ज्यादा मदद कर रहे हैं, because they tell you your weakness. आपको आपकी weakness बता रहे हो. Then you focus on your weakness, and one day you'll, go above that, and उन सबको चुप करा दोगे. So please focus on yourself, have self belief. मैं कर लूंगा, आज फेल हुआ हूं, कल कर लूंगा. मैं give up, I will not give it up today. I will accept my defeat today. I will go back, improvise, learn my mistakes, and then function for tomorrow. So ये mental enemies हैं, and similarly mental allies क्या होती हैं? I'm just open for your answers now. What are the mental allies, friends of mental strength? बताइए. Focus. Friends, allies of, I'm asking you all, what are the allies of your mental capability or your mental strength? Hope, self-confidence, motivation, self-belief, yes, positivity, confidence, self-confidence, hardworking, yes, self-awareness, result, positive result, focus, good,
Yes, self-confidence. So all your answers are generally on the same line. Okay, and बहुत ही अच्छी बात है. If you are clear on, आपको क्या क्या चीजें मदद करेंगी आपके माइंड को ट्रेन करने में, so half the work is done. And you know your enemies, आपके दुश्मन कौन कौन सी चीजें हैं, work upon that and you will be able to. It's just simple. Just have self confidence, trust in yourself. कर पाओगे. भगवान ने सबको एक दिमाग दिया है, किसी को अच्छा दिया है, किसी को बुरा दिया है, ऐसा कुछ नहीं. यू एक्चुअली हैव टू ट्रेन योर माइंड. आप जितना अपने माइंड को ट्रेन करोगे टुवर्ड्स व्हाट यू सेट टू अचीव, यू विल बी एबल टू अचीव वन डे. फेलियर एक्सेप्ट करके गिव अप कर देना इज नॉट द सोल्यूशन. इट इज नेवर द सोल्यूशन. फेलियर हुआ, आई फेल्ड, यस आई फेल्ड, आई वर्क अपॉन इट एंड आई अगेन अपेयर टू अचीव इट. इफ यू ट्राई हार्ड, भगवान आपकी मेहनत देखता है, भगवान आपके साथ हमेशा रहता है. इफ यू आर अ हार्ड वर्किंग सोल, गॉड विल हेल्प यू. ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा. सो कमिंग बैक, व्हाट आर द allies of your mental strength, mental endurance? First is clarity of thought, clarity of decision. Second is consistency. आप हार रहे हो, you are still trying, do not give up. Just not give up. करते रहो, ट्राई करते रहो. आज हारोगे, कल हारोगे, परसों हारोगे, but do not give up. Consistency always and always helps you. And the third is discipline. Always be clear. Discipline is a system. Motivation आई है, आपने thought लिया है, you will be able to achieve it. But one day you will give it up because results positive नहीं आए. But if you are disciplined, आपने जो अपना syllabus बनाया था, अपना way of working बनाया था, अगर आप उसी पे काम करते हैं dedicatedly, even your motivation goes away, your system, your discipline will take you to where you want it to be. Okay, so these were a couple of allies and enemies. आपको enemies पता है, allies पता है, work upon that. And let me tell you a couple of techniques which I use in my personal life, जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में I think use की है to train my mind कि हारूंगा but give up नहीं करूंगा. Let me just, motivation is a myth. Oh, okay. Let me just tell it to you. I'll come back to you. First is 5-minute mental rehearsal. Always, this is the first step. This is the technique which I always use. 5-minute mental rehearsal. अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, आप करोगे. बचपन से, जैसे मैं फौज में आना चाहता, छोटा बच्चा एक फौज में आना चाहता है, वो बचपन से वो ख्वाब देखता है, वो ड्रीम कर रहा है, विजुअलाइज करता है खुद को वो यूनिफॉर्म पहने हुए, खुद को उस पोजीशन में काम करते हुए. सो दिस ऑलवेज हेल्प्स बिकॉज हमारा माइंड वर्क्स टुवर्ड्स व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी बिलीव इन. आप बिलीव करो, मैं पहनूंगा, आज कल परसों चौथ पहनूंगा, बट पहनूंगा जरूर एक ना एक दिन. हार के 10 बार हारूंगा, बट आई विल स्टिल वेयर इट. सो योर माइंड विल टेल योर बॉडी कि हाँ नहीं, अब तो पहनना ही है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, सो आई माइट एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स इट. So always do this 5-minute drill, which will every day do it. Always when you सोने से पहले, उठने के बाद, close your eyes, think where you want to be. खुद को वहां पिक्चर करो, खुद को एम करो, अंदर से खुशी मिलेगी, अंदर से मोटिवेशन आएगी, एंड वो काम, डेडिकेशन अंदर से आएगा. मैनिफेस्ट करो. yes, the word will be manifest yourself one day there. Second is 20 minutes of focus drill towards your goal. दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड. ठीक है, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, और यू आर अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, और एनीथिंग विच हेल्प्स यू गो देयर. सो मिनिमम 20 डे ड्रिल, तो 20 मिनट्स ड्रिल एवरी डे यू शुड डू इट. पढ़ाई करना, एग्जाम आ रहे, 20 मिनट्स तो मैं हर टॉपिक को दूंगा ही दूंगा. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 5 टॉपिक्स, सो 20 मिनट्स ईच टॉपिक यू हैव टू गिव. दिस इज अ 20-minute ड्रिल which helps you train your mind. धीरे धीरे आपको भी पता होगा, जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं, they can sit for longer hours, but जैसे जिनको आदत नहीं है, जो पढ़ाई में कंटिन्यूस नहीं है, तो वो अगर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, इनिशियली उनको 5 मिनट बैठ पाएंगे, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, then finally comes a day where you're able to sit for longer hours without getting tired. So always do that drill. And this is the second step, 20-minute drill.
5 minute rehearsal, 20-minute drill. Third, I would say is every day one more rule. चलो आज मैंने सोचा था कि मैं 20 मिनट पढ़ूंगा, 5 सब्जेक्ट 20-20 मिनट ईच पढ़ाई करूंगा, 20 मिनट्स ईच, बट आई ऑलवेज ऐड वन मोर. और क्या, चलो मैं आज एक एडिशनल सब्जेक्ट या एक एडिशनल टॉपिक कवर करूंगा ओवर एंड अबव दीज 20 मिनट्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स. सो ऑलवेज हैव वन मोर एडिशन एवरी, हर दिन, एवरी डे फोकस की ये मेरा बेसिक करना ही करना है 20 मिनट ड्रिल, इसके बाद मैं क्या करूँ. Add one thing every day. So your list, as your days go by, your list will increase, but that will help you gain confidence in it. Okay. So last, fourth technique जो मैं बात करूंगा वो ये होगा कि आफ्टर एक्शन रिव्यू. ऑलवेज रिव्यू yourself. हर दिन के एंड पे, मे बी छोटे गोल्स के लिए, फॉर लॉन्गर, लार्जर, बिगर गोल्स, हर 5 दिन 10 दिन में आप रिव्यू करो अपने एक्शंस. क्या जो आपने किया उससे आपको कोई फायदा हुआ? Was this helpful? Did you achieve something in a couple of days? And always note it down. It will always help you. जब आप लिखते हो अपनी गलतियों को, आप रिजल्ट्स लिखते हो आफ्टर एक्शन रिव्यू कि मैंने क्या किया, मैंने क्या अचीव किया और मैं क्या नहीं कर पाया. जो मैं नहीं कर पाया, टारगेट दैट नेक्स्ट टाइम. ऑलवेज टारगेट दैट. सो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूंगा. यू नो, योर माइंड मेक्स यू डू एनीथिंग. यू नो, अगर आप कुछ चाहते हैं, सो इट, योर माइंड ऑलवेज हेल्प्स you in that. Let me give you an example is the selection procedure or the selection or the probation on a para special forces, because I've been through that. Many of us, or maybe my seniors, my friends, my juniors, my colleagues have been through that. So it is not your body which gets you, like give up, ask you to give up. It's your mind. बॉडी हारी नहीं है अभी तक, बट आपका दिमाग हार गया है. आपने दिमाग से गिव अप कर दिया. यू हैव गिवन अप फ्रॉम योर माइंड. यू हैव गिवन अप. यूर आउट. यू वांटेड टू वेयर दैट मरून बेरे, बट योर माइंड टोल्ड यू नहीं भाई, और नहीं, इससे ज्यादा नहीं. यू गिव इट अप. You lost it. You could not achieve what you wanted. But always and always focus that your mind helps you achieve it. So train your mind accordingly. ये सब चीजों से आपको हेल्प मिलेगी. So this was my one example. And एक और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आज का, this was our first live session where I'm also reading about whatever comments you are giving it here. But so इसके लिए I had to train my mind. I have to sit in front of a screen where I'm just seeing myself. I'm not able to see you, but I'm able to read you. So I have to train myself. So मैंने तैयारी की. I prepared. मैं कैसे कवर करूंगा? What will I speak to you? इसमें से क्या आपको हेल्प करेगा आगे जाने के लिए? So ये सब करके then I wrote it down. What are my weaknesses? मैं उनको कैसे एड्रेस करूंगा? So this is this is how I prepared for today's live session with you all. ये मेरे कुछ points थे which I wrote कि I'll be able to do it, and it has, I think it was successful. You have something to take away from this session. So I'm open to all of you for your questions. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, we'll give a 5 minutes question and answer session. Can I suggest any channel or book? Depends upon whatever subject you are going for. आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में करना है, और different topics, different subjects which you're looking for, it helps you or it gives you a particular choice. Book accordingly, and channel also accordingly. डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बुक सजेशन. देखो, बुक तो देर आर 10 डिफरेंट, चलो ये बहुत ही ज्यादा में से क्वेश्चन पूछा गया कि मैं डिफेंस एस्पिरेंट हूं और मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. यू नो द सिलेबस. आपको सिलेबस पता है, आपका एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा. यू नो द सिलेबस, सो डिवाइड दैट इनटू छोटे छोटे पार्ट्स. और आप पूछोगे किससे पढ़ूं या किस बुक के बारे में पढ़ूं. ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है. एवरी वन इज शेयरिंग गुड इन्फॉर्मेशन. सबके पास सिलेबस है, सिलेबस की पढ़ाई है, किसी का बताने का तरीका अलग है. सो अब आप बोलेंगे अरिहंत पढ़ें या
देयर आर वॉट एवर इन द मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है. प्रिपेयर, द सिलेबस इज फिक्स्ड, यू गो थ्रू द सिलेबस, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स इज मॉक टेस्ट. हर बार जितना ज्यादा आप पढ़ाई करने के बाद टेस्ट, मॉक टेस्ट देंगे, चेक योर आंसर्स, यू विल नो योर वीकनेसेस. किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के किस पार्ट में आप यू आर लूजिंग आउट ऑन योर क्वेश्चंस. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज मैक्सिमम टाइम जो मैंने अपने टाइम पे लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वेंट थ्रू ऑल द सिलेबस, आई रिहर्स्ड इट, प्रैक्टिस्ड इट एंड लर्नड इट. इसके बाद मैंने एक 10 years क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 10 पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की एक बुक थी, आई स्टिल रिमेंबर 2000 आई थिंक 13 or 14. So yeah, so every day I used to give one paper, review one paper. जब वो 10 साल के क्वेश्चन सारे कर लिए, then I bought another book. उससे भी पुराने क्वेश्चन, इंटरनेट पे गया, क्वेश्चन एंड आंसर, मॉक टेस्ट. आजकल तो बहुत ज्यादा है. 2013 जब मैंने एनडीए एग्जाम दिया था, so back then internet was not so easily accessible and information was limited. जो बुक्स में मिलता था तभी वो मिलता था. आज में every one of you have access to internet, you can actually use it for good. Thousands of question papers, viewers, guidance हर जगह है, पढ़ लो और एग्जाम के मॉक टेस्ट देते रहो. It will help you. How to overcome negative thoughts? Think positive. Okay, negative thoughts तो आते हैं. Negative thoughts आपको आपकी हार से आते हैं. So मेरा एक रिकमेंडेशन, जो जिनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, just take a like a blank page or a blank booklet and write down your thoughts. लिखो, चाहे अच्छे थॉट्स हैं चाहे बुरे थॉट्स हैं, लिखो उन्हें and read them every day. and उन सब में से अच्छे थॉट्स जो होंगे ना, उनको सर्कल करना, सर्कल इट. एंड जब नेक्स्ट डे आप सुबह उठोगे, रीड द सर्कल्ड थॉट्स. एंड इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस. खुद पे विश्वास रखो, डू नॉट गिव अप होप. यार इतनी जल्दी हार मानने के लिए नहीं बने थे भगवान ने, हमें बनाया नहीं है टू गिव अप सो इजीली. सो ऑलवेज फोकस. अच्छे थॉट्स, स्पीक टू गुड पीपल, लर्न अबाउट गुड थिंग्स, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों से मिलो, पॉजिटिव माइंडसेट का एनवायरनमेंट क्रिएट करो, निगेट द नेगेटिव पीपल, निगेट द नेगेटिव थिंग्स. दुश्मन भी होंगे, दोस्त भी होंगे. इफ यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स, पुश अवे देम, पुश अवे, नहीं चाहिए हमें. ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव. धीरे धीरे यू विल सी ओवर अ पीरियड ऑफ like a week or 10 days or a month, your thought process will change. Okay, next question please. How to run longer and faster? Prepare, rehearse, train. These three things with consistency every day. इसके अलावा और कोई नहीं है ना, भगवान गिफ्ट नहीं देगा. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर योर बॉडी, प्रिपेयर योर माइंड एंड ट्रेन योरसेल्फ. इज इट स्ट्रॉन्ग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और पढ़ते हैं. हाउ टू हैंडल डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर गोल्स? आई थिंक डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर गोल्स, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने गोल से, ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट यू वांटेड टू बी. अपने आप को उसमें विजुअलाइज करो और सोचो कि अब यो नहीं दिखेगा, अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा. इफ दैट फियर डज नॉट हेल्प यू, देन योर गोल वाज नॉट व्हाट यू वांटेड. लाइक अंदर से अच्छा गोल लेना, लाइक यू वर नॉट एम्ड, फुली बिलीव इन योरसेल्फ, यू वर नॉट एम्ड टुवर्ड्स दैट गोल, अगर आपको डिस्ट्रैक्शंस हेल्प कर रहा है. यार I felt very nice from Jammu. Yes, thank you. I'm also from Jammu. Thank you, everyone. How to work on my OLQs? अच्छा, okay. क्या OLQs ना सिखाई नहीं जाती. It comes naturally with the surroundings, with the environment. आप जैसा अपने friends, अपनी families, आप जैसे पढ़ते हो, you speak, you act. It comes naturally. So, yeah, आप read कर सकते हो. You can read about the OLQs. What are the OLQs? Try and imbibe them in, like आप उन्हें use करो अपने actual life. This will of course help you to grow in a future, turn yourself in a good human being. You know a set of OLQs. Online जाइए, find out what are the OLQs. Okay, anything, any one OLQ, pick it up, use it in your day. कि आज मैं ये OLQ जरूर करूंगा, जहां मौका मिलेगा मैं वो जरूर करूंगा. धीरे धीरे आपकी आदत में वो शामिल हो जाएगा, वो आपका OLQ बन जाएगा.
आपको ट्रेन करना पड़ता है हर चीज के लिए खुद को. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQ इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. Teacher handling 48 students in a classroom, how to handle them with patience throughout the day. Ma'am, you are very well experienced, 48 students आप handle कर रहे हो. My mother, she was also a teacher. She also handled a lot of students in her life. I will definitely ask her and मैं आपका आंसर वहीं से दे पाऊंगा. I don't know 48 students को हर दिन कैसे handle करते हैं, because मैं teacher नहीं था कभी भी. But yes, it is difficult. I accept. I've seen my mother. It helps. I will get back to you on that question. How to overcome fear. How to overcome fear. यार fear की वजह से ही तो आप अच्छा करते हो. So if you have fear, so let's say how to overcome your fear. Fear of what?